Namaskar, Anup ji. नमस्कार, कैसी हैं आप सान्या जी? I'm fine, thank you. Very nice to have you around, and I welcome to you in my space that I choose to call Unbecoming with Sanya. So, before I begin, I would like to introduce you, although a lot of people know you in around the world. But today I had this thing in my mind that let me just say whatever I have to say about you today. So, I'm deeply honored that you have chosen to come and join me in my podcast. I welcome you. You're not just the voice who have touched millions, across and generations, not just in India, but also around the world and continents. You're not just a singer, you're not just a composer, you're not a performer only. You're also a spiritual ambassador who has been, given a title of Bhajan Samrat. And a lot of people, like I myself, growing as a child, have listened to your music and who have become a part of our emotional and devotional, journeys. So there's a lot of gratefulness if people realize how music is profound in their lives. And I myself has music in my life. So I'm very grateful to you. And and one more thing I want to say, I have been talking to you about your travels. You're a highly, you know, adaptive to traveling. So you've traveled all around the world. And you told me just last month you were away 20 days in a month and traveled number of countries, 2 days here and across the continents, from Australia to Europe to LA to New York and back to India. So this is how you are at at your age that you are in. I mean, this is incredible. So I would want people to join me, an incredible singer, an incredible human being, Anup Jalota ji. I welcome you. Thank you so much, and so much you have already told people about me. In fact, I also didn't know so much about me. You have, you, Yeah. you have given me good information. And I will tell you this, let's talk about the traveling thing. Since last 45 years, I'm doing 20 flights a month, national or international. And every month there are trips abroad. Like America is 6 to 8 times a year. England is 3, 4 times. Then Australia, South Africa is every year. Like the trip I just came back 3 days ago was Durban, Johannesburg, New York, New Jersey, Los Angeles, Cleveland, and New Mexico. All this I covered in 15 days and back in town. So this is possible only if one is very relaxed from inside, no stress, no negative thoughts. Because I always think when I sit in the flight that I'm not flying, I'm only sitting or sleeping. So what is the tension? I have seen so many people in the car that they keep giving instructions to the driver: go right, go left, go a little slower. Here you can drive fast. It means you are driving half. So if you are driving half, why don't you drive full? But all these things are extra stress, buying extra stress. So when I sit in the car, I sleep. I give my address to driver before I sit in the car, 2, 3 hours before that, and he is ready with the route. And I sit and just sleep in the car. Or if I'm working on phone something, I don't see outside what's happening. He will just tell me now we are reached and I can take it now. These few things makes your life very easy. I am going to be 73 next month. I really feel that I have stamina of about 30 years old man because I work all the time. When I go to bed, I stop working. But till I go to bed, I'm working. I get up in the morning, there are students waiting for me in my music room, and I go to them, just start singing, teaching them. Then there are some music director, there are some. Today was Anu Kapoor ji. He was here. He's doing some TV serial, so I'm singing in that, also acting one Really? episode in that. So all that, but there is no time. Now, Anu Kapoor, I told him, now it's time for Sanya. He said, okay. And he left.
And on with you, when I finish with you, I'm going to attend one film premiere show, a Sindhi film, Jhulelal. I'm attending that. And after that, going for a very beautiful party in the night. It's Mika's birthday. Really? So singer Mika's birthday, he has organized a party. So I'll be there till late night. And last night I had party at my place. So many singers came. Shabir Kumar ji came. He sang. There are many singers they sang. So every day is busy. Every evening is busy. If I'm busy, my body is happy. And 7 to 8 hours sleeping is also very important. That also I make it a point to do it. Because when you sleep for 7, 8 hours, you have a hospital in your body which start working. They start treating you when you're sleeping. When you're up walking and working, at that time your hospital is closed. Yeah. It doesn't heal your body. Your body will be healed when you sleep. So when I give that 7, 8 hours to my hospital every night, they work very well. All the doctors, they're treating me in the night. And when I get up in the morning, I'm fresh because slept very well. And there is satisfaction that whole day I worked so much. So this way one can live and live satisfactory. See, this is a very good tip for longevity. A lot of people are talking about biohacking and longevity. आपने बहुत अच्छी तरीके से very simplified way में is not at all, it's a common sense and very simple thing आपने बताया है. Because I think a lot of people don't understand the importance of sleep. Sir, एक चीज बताइए आप. I have spoken to you one thing like before also. I just wanted to, because y- how is it to be a person at the age of 73 and a person who is listening to you from, let's say, a 20 years old? What do you have to say to that 20 years old who who has yet to live a lot of experience in life? Give me just 3 to 5 tips for that human being who's just who's amazed with life, but who doesn't know where he wants to go, what he wants to do. Can you just give me any 5 common tips for them, which you feel is very, very prime for them to hear? See, the life, everybody try to plan that I want to become this, I want to become that. If they are doing proper course, proper education of medical, they will definitely become a medical doctor. If they want to do engineering, they must be studying engineering. But for professionals like us, we have only a goal. We think that we want to become a singer, a popular singer. But that goal can take you to other directions also. The biggest example is our Kapil Sharma. Kapil Sharma came to Bombay to become a singer, and see what he has become. So his goal was to become a singer. But there are some hidden qualities of every person which they don't know. When it will reflect, it will come out. And these hidden qualities will attract someone. So there are so many people that came to Bombay to become hero, like Subhai Bhai, who became a director. So there are so many people in different fields. They try and they become successful in different fields. So keep trying things. Keep trying. You never know which field you will be recognized. So never close your eyes or never have just one target in professional field. डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर पढ़ रहे होंगे तो बन जाएंगे डॉक्टर. डॉक्टर पढ़ रहे हैं तो आप फुटबॉल प्लेयर थोड़ी बनेंगे, जी. है ना. लेकिन अगर आप में कोई ऐसी क्वालिटी है जिसको आप न दबाएं, खुल के रखें, तो वो क्वालिटी सामने आ जाएगी, लोग आपको पहचान जाएंगे. तो ये मैं सबको कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल रिजिड ना हो कि जी मुझे तो यही कर. पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है आपको कुछ और बनाने के लिए. जी. इसमें मैंने आपको बताया कपिल शर्मा
आज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सही है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, लेकिन एक ही आदमी को याद कर लीजिए काफी। सर ये बताइए कि व्हेन यू लेट्स टॉक लाइक इन टर्म्स ऑफ what is your just walk me through a typically your day because you were saying you did tell me like you have typically planned all your activities. Is that what you do every day? I plan, properly plan, and I don't waste time. I don't get time to rest in the day. I get time straight in the night to go to bed. And the whole day there is something going on. I also have office in my house. So that is also an easy thing, that day-to-day things. I sit in the office. I'm giving you this interview sitting in my office. So a lot of things I clear sitting in the office. My staff is there. So day is very well planned. But people sometimes tell me, I'm very tired, I'm going to take a rest. But why tired? Means you are not thinking positive all the time. I never feel tired. I'm 70, at the age of 73, I never feel that I should go to bed and sleep for a couple of hours. Sometimes jet lag force you to do that. But that also I don't do. I don't unnecessarily go and just lie down. Keep myself busy meeting people, creating some songs. And there are many meetings today, including Anu Kapoor's song. There were some other people for some other business. They came and talked for some film production. Some students were quite late. They were here today. They just left. They also want to learn and some new composition they want to hear. So all that. And now when I finish with you, I just change and go to Jhulelal movie and then to Mika and then come back in the night at 1. Really? Then how do you get up in the morning, sir? Like what's your like morning schedule? I always get up, I put an alarm every night. That is 1 o'clock sleeping, to 9 o'clock utna hai, 9 o'clock alarm, wake up call. And 6-7 hours सुबह is good enough sleep, I give 7 to 8 hours. right? और That's सुबह उठ के फिर चाय वाय पीते हैं, बड़ा बादाम खाते हैं, रात के भीगे हुए बादाम, एक बहुत बढ़िया खजूर और थोड़ा अखरोट और थोड़ी सी एक्सरसाइज। हमारी योगा टीचर भी आ जाती है कभी कभी, वो भी करा देती है, बहुत अच्छा कराती है योगा, उससे मुझे काफी फिटनेस फील होती है। okay. एंड जल नीति करता हूँ नहाने से पहले। जल नीति से हमारा जो नेजल पैसेज है वो क्लियर होता है, यहाँ से पानी डालना है, यहाँ से निकलना, Right. वो करते हैं। थोड़ा योगा करते हैं, थोड़ा बाबा रामदेव को याद करते हैं, 2-4 उनकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। Okay. एंड देन आई एम रेडी टू सिट विद माय स्टूडेंट्स एंड टीच देम एंड सिंग। वो सब होता रहता है। लंच टाइम 1 बजे तक वो लोग बैठते हैं, चले जाते हैं। 1 बजे फिर 8-10 लोग साथ में होते हैं लंच। मैं कभी अकेला नहीं खाता। Really? बाद में शाम हो जाती है, शाम की कहानी अपनी अलग है, शुरू हो जाती है। जैसे आज की शाम है, बहुत खूबसूरत है। फिर कल आँख खुल जाएगी तो फिर नया दिन शुरू हो जाएगा। Wow. I mean, this is ideal, sir. And because for me, I feel that आप एक चीज बता रहे थे कि स्ट्रेस कुछ नहीं होता, बट क्या स्ट्रेस कुछ है दुनिया में आजकल? स्पेशली यंगस्टर्स काफी वो यूज करते हैं वर्ड स्ट्रेस को और एंजाइटी को। उसके लिए लाइक डू यू थिंक इट इज एग्जिस्टिंग और ये कुछ दिमाग से खुद बनाया गया है? स्ट्रेस का मतलब है कि जो करंट पोजीशन है लाइफ की, वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, उसका मतलब है स्ट्रेस। अगर आप अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं तो स्ट्रेस क्यों होगी? लेकिन नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको हैंडल करने का तरीका ये होता है कि आप उसकी प्रोग्रामिंग, अगर आप 4 घंटे अपने लैपटॉप के साथ, उसको बीच बीच में गैप दीजिए, 2 घंटे बीच में 1 घंटा रुक, उस घंटे में आप थोड़ा सा प्राणायाम कर ली, थोड़ी योगा एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा ये जो इंटरेस्टिंग बड़ी रील्स वो देख लीजिए, रजनीश को, किसी और संत को। कुछ दिन में आप चलना भी दर्द महसूस करेंगे चलने में, कुछ दिन में आपको चश्मा लग जाएगा,
तो ये सारी चीजें से अगर बचना है, प्यार से रहें, तो अपने काम को थोड़ा बीच बीच में गैप दे तो बड़ा अच्छा होगा। मैं पता है क्या करता हूँ, मेरा जो कॉन्सर्ट होता है, ज्यादातर मैंने म्यूजिशियंस को देखा है, वो लोग आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं कॉन्सर्ट शुरू करने से पहले, अपने रियाज करते हैं, अकेले बैठ जाते हैं। कॉन्सर्ट से पहले 15 मिनट कपिल शर्मा का लाफ्टर चैनल देखते, Okay, that's cool. Okay. तो मेरा मन बड़ा लाइट हो, बड़ा मजेदार हो, क्योंकि मैं तो स्टेज पे जोक वगैरह भी सुनाता हूँ ना अपने गाने के साथ। जी। तो अगर मेरा मन ही स्ट्रेस में है, कैसे सुनाऊंगा, कैसे गाऊंगा? मुझे तो भजन गाने, अंदर अगर स्ट्रेस है तो भजन के, तो वो स्ट्रेस को आने नहीं देता मैं अपने पास, क्योंकि अब कॉन्सर्ट करना है 2 घंटे, कुछ परसेंटेज स्ट्रेस ही आता है कि पता नहीं कैसी ऑडियंस हो, पता नहीं साउंड सिस्टम कैसा हो, क्या करेंगे हम। लेकिन उस सब को भूलने के लिए 15 मिनट आफ्टर चैनल, कपिल शर्मा की जय हो, उसके बाद आ जाते हैं और फिर फ्रेश। Okay, that's good. That's nice. So, couple has been very crucial for many people. So, I agree with you. So, ye, agar we go back to what I want to ask you is that if we go back to the idea about stress, I can understand. But when it comes to you practicing music, when you practice music, do you think it is a stress buster? The music itself? म्यूजिक इटसेल्फ गिव्स यू रिलैक्सेशन, ये हमारे लिए वर्क है। हम घर में जब गाते हैं तो हमारे लिए रिलैक्सेशन है। स्टेज पे गाना, फेस करना 1000 लोगों को, हर एक को सवाल का जवाब देना कि कल आप कहाँ जा रहे हैं, हर एक को वही जवाब देना, क्योंकि सबका सवाल ये, फिर कितने मिल जाते हैं कि आपको हमने वहां सुना था, वहां सुना था, उनको भी जवाब। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें स्ट्रेसफुल, लेकिन स्ट्रेसफुल ना हो, कम हो, तो उनसे प्यार से बात, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर आप उसको टेंशन ले लेंगे, अरे यार ये तो परेशान कर रहा है, हम तो सबसे बड़े प्यार से। That's some point, sir. Actually, there's a huge point in it, what you're saying. Because I think जो आप बोलना चाह रहे हैं, the thing is that when you are stressed, you are not really pleasant. And when you're not pleasant, the other person becomes also unpleasant. And then you go into a kind of a downward spiral. And then it becomes stress ultimately for both the two people who are communicating. So it's a very smart thing you just mentioned right now. So, what is your relationship with Riaz? Like, you are a person who is really a multi kind of a tasker. You travel, you do a lot of performances. So, when do you do get Riaz time, I'm sure, but how do you give yourself a Riaz time and what do you really do that? Because When I get up in the morning, right. my riyaz starts. I have a tanpura in my bedroom. When I get up, उसको शुरू कर देते हैं, शुरू किया और अपना रियाज शुरू, बाकी काम भी चल रहे हैं कमरे के अंदर। मैं तो सुबह उठ के अपने कपड़े भी आयरन करता हूँ, इसमें भी रियाज चल रहा है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, वो भी तो रियाज है, उसमें भी मजा आता है। तो रियाज तो हर वक्त है, अगर कार में बैठे हैं और नहीं सो रहे हैं तो रियाज कर रहे हैं, तानपुरा लगा दिया, रियाज कर रहे हैं, फोन में तानपुरा लगा, मोबाइल। तो गाना तो हर वक्त, कोई टाइम तय नहीं करना है, ऑल द टाइम। So, when you're doing a riyaz, is it anything you want to specifically put forward that this is something is very, very crucial when you are somebody who wants to just a kind of a thing because आपने तो पूरी जिंदगी किया है. रियाज वो किया जाता है, स्टेज पे हम वो गाते हैं जो गले से निकलता है आराम से। तो रियाज को और परफॉर्मेंस को, इन दोनों में अलग अलग मटेरियल है। रियाज में मटेरियल है जिसमें हम बिल्कुल ही स्पेशलाइज नहीं हुए, जिसको हमने पूरी तरह साधा, और परफॉर्मेंस वो है जो हमने साध लिया है, हम वही तान वहां गाएंगे जो हमसे निकलती है आराम। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजर हमारा रियाज सुन तो वो हमारा प्रोग्राम कैंसिल, इसके गले से तो निकल ही नहीं रहा है, तो हमारा प्रोग्राम, तो वो है रियाज। रियाज ये थोड़ी कि सारे ये तो निकल ही रहा है, लेकिन सापा गवर है जानी सा पानी सा घर है जानी सा, ये थोड़ा मुश्किल। तो ये गाना है रियाज, Right. ये फर्क है। Interesting. Interesting.
सर टेल मी वन थिंग, जब आप कुछ मेडिटेशन करते हैं? हाँ हाँ, वो हमारे सुबह की एक्सरसाइज में मेडिटेशन भी तो है। सो इसमें इज लाइक साइलेंस मेडिटेशन या आप कुछ इट्स स्पेशल ओनली 10 मिनट्स। गाता नहीं हूँ, ओम उसको बोलता नहीं, सिर्फ आंख बंद करके उस छवि के बारे में सोचा। एंड साइलेंस? ये एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है बॉडी का। अगर आपके बॉडी में कोई तकलीफ है वो उससे दूर हो जाती है, क्योंकि आपका ध्यान एक जगह एकत्रित हो, आपके जो डॉक्टर्स हैं बॉडी के अंदर वो जाग जाते हैं, वो आपका ट्रीटमेंट करने, Okay. हॉस्पिटल खुल जाता। जी, आप ये जैसे मेडिटेशन की हम जब बात कर रहे हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, कहीं आपने, बिकॉज यू आर कमिंग अ लॉन्ग बैक, आप तो लेजेंडरी इस तरीके से हैं, आपके पिताजी भी थे, तो आपका जो डिवोशन है लाइक फॉर म्यूजिक, उसका कोई प्रभाव है? क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूजिक, मेडिटेशन, डिवोशन एक भाई बहन की तरह होते हैं, तो सांस जैसे है, ब्रेथ। मैं 14 साल का था, अक्सर मैं अपने पिताजी के साथ योगाश्रम जाता था लखनऊ में। तो योगाश्रम में जाके वहां तो 50-60 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जल नीति कर रहे हैं, शंख प्रक्षालन कर रहे हैं, शीर्षासन हो रहा है। वो उनके साथ देख देख के करने में इजी हो जाता है। नहीं तो 14 साल का लड़का क्यों करेंगे ये सब, वो तो कुछ और करेगा। लेकिन मैं क्योंकि उनके बीच में था, जाता था साथ में, तो मैंने भी शुरू कर दिया तरीके से। और टीचर्स थे जो सिखाते थे, कुछ एक्सरसाइज करते हो और वो पानी नीचे से निकल जाता है, तो पूरी बॉडी आपकी साफ हो गई। जी। कुंजन उसके पहले किया, पानी पिया बहुत सारा और मुंह से निकाल दिया, तो ये एरिया साफ हो गया। और शंख प्रक्षालन से पूरा साफ हो गया, यहाँ से पिया और नीचे से सब पानी निकल गया। तो ये सब जो चीजें हैं, उसके बाद वहीं पर मेडिटेशन करते थे, वहीं योगा, ये सब चीजें करने से उस उम्र से आज तक उसकी शक्ति मिली है, उसका बल मिला है। प्राणायाम से सांस में बल मिला है। मैं लोगों को स्टेज पे कभी कभी हंसते हुए बताता हूँ कि आप लोग प्राणायाम किया करिए, इससे आपको 2 चीजों पे कंट्रोल आ जाएगा, एक अपनी सांस पर और दूसरा अपनी सांस पर। अच्छा, राइट, दैट्स ट्रू। वेरी नाइस। तो सर जी मुझे ये बताइए, बिकॉज यू हैव अ विजडम व्हिच इज, आप अप्लाई करते हो विजडम अपनी लाइफ में ना? मैंने भी जो भी थोड़ा बहुत आपसे डील किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको अप्लाई करते हैं। तो जब डिफिकल्ट मोमेंट्स आते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको व्हाट कीप्स यू सेंटर्ड इन डिफिकल्ट मोमेंट्स? व्हाट इज इट? डिफिकल्ट मोमेंट्स कोई चीज नहीं है, ये डिफरेंट मोमेंट्स। आप हर वक्त केक वॉक क्यों चाहते, आप हर वक्त ये क्यों सोचते कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो? जब आप बीमार पड़ते हैं, कोई बहुत बड़ा नुकसान है, तो आप भगवान को कहते हैं वाई मी, वाई यू हैव गिवन इट टू मी। और जब आपको आपको कोई अवार्ड मिलता है, उस वक्त तो आप नहीं कहते वाई मी, उस वक्त तो आप कहते हो आई डिजर्व इट। तो ये जो डिफरेंट मोमेंट्स आते हैं लाइफ में, उन सबको आप प्रेम से संभालिए, क्योंकि सब कुछ आने वाला है। ये ऊबड़ खाबड़ जमीन है, कहीं भी अच्छी रोड बन जाती है, उसमें भी ग्रीन लाइट आती है, उसमें भी स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, अभी स्मूथ तो पूरा है ही नहीं ना जर्नी। तो उस पूरी जर्नी को अगर आप चाहते हैं एंजॉय करें, तो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए चलिए। हमारे में भी बहुत डिफरेंट चीजें लाइफ में आई हैं, लेकिन उसको मैं ये कह दूं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। उसको मैनेज करना है, डिफरेंट है। जैसे कल जुकाम नहीं था, आज जुकाम है, राइट। तो क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं, डिफरेंट। वाओ, नाइस। सो इसी के उसमें सर, डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग वी ऑल मस्ट लर्न, और समथिंग वी मस्ट रिमेंबर, और समथिंग वी मस्ट अप्लाई? Because all this you're saying is very, it looks like very spiritual. स्पिरिचुअलिटी इज द रियल गोल फॉर एवरीवन। आप राम को, आप कृष्ण को मान, उसके बाद कोशिश करिए कि उसके आगे भी कुछ है जहां राम कृष्ण नहीं है। एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें राम कृष्ण नानक जीसस अल्लाह सब जमा है। आप उस कमरे में जरूर जाइए, उसमें आपको सबको मिलेंगे, आप उन सब की सेवा करिए। वो नजर आएगा छत पे जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है, फिर उसको वहां निकल जाइए। ये सब पीछे छूट गए।
और आप कहाँ चले गए? जहाँ पर ये सब कोई नहीं है, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन जाना किसके थ्रू पड़ेगा? इन सब के थ्रू पड़ेगा। राम को जानना होगा, कृष्ण को जानना होगा, नानक को जानना होगा। उसके बाद आपका जो मन है, मस्तिष्क है, क्योंकि ये रास्ते में है, It's on the way. इनका ज्ञान चाहिए, ज्ञान प्राप्त करके निकल जाएगी। बिल्कुल। Do you see, sir, any in your, because you have like so much of within you. You're like a walking and talking legend in terms of so many angles, and probably life has taught you so much. तो आपके any fans जब आप मिले, आपके कोई इंटरैक्शन जो आपके लिए आप तो बहुत लोगों को अनफॉरगेटफुल मोमेंट्स देते हैं जब वो आपसे मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो उनको कितना, मैंने सुना है, यू नो, आई हैव हर्ड अबाउट, आई हैव लॉट ऑफ पीपल हु मेट यू इन कनाडा, दे वर रियली हैप्पी टू मीट यू, बट आपको किसी ने अनफॉरगेटेबल मोमेंट दिया है? कोई परफॉर्मेंस, कोई फैन, कोई इंटरैक्शन? मुझे लोग जब मिलते हैं कॉन्सर्ट में, तो मुझे छूना चाहते हैं। कोई हाथ मिलाना चाहता है, कोई पैर छूना चाहता है, कोई गले लगना चाहता है। वो इसलिए है कि वो ये जानते हैं कि ये बंदा जो है, ये थोड़ा अपलिफ्ट हो चुका है, हमारे पोजीशन से थोड़ा अपलिफ्टेड है। और जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को मिलता हूँ जो अपलिफ्टेड है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं बहुत क्लोज रहा रजनीश जी थे, उनसे मिलकर मुझे अच्छा लगता था। सत्य साईं बाबा से, इन सब के मैं नजदीक रहा हूँ। स्वामी चिन्मय आनंद, अरे मुरारी बापू जी, जी। अरे मुनि जी, चिदानंद स्वामी, जितने संत महात्मा हैं, उन सब से मैं बहुत क्लोज हूँ। और वो लोग सच में इनलाइटेंड हैं। तो जो लोग इनलाइटेंड हैं, उनके पास थोड़ा समय गुजार के बहुत अच्छा लगता, बहुत कुछ दे देते हैं। तो आज भी मैंने अपना स्वभाव यही बनाया हुआ है कि जिन लोगों की बात करके, सुन के, मिलकर, और उनसे जरूर 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 मिलना चाहिए। दे आर द योर रियल गाइड, एंड दे विल कीप शोइंग यू द राइट पाथ ऑफ लाइफ। सर, जब आप बोल रहे हैं किसी से मिलना, नाउ आई वाज, बिकॉज़ मैंने कहीं सुना था, आई एम श्योर आप मिले हैं आशा जी से? बहुत बार बिकॉज़ सर आपने कहा कि मुझे अनफॉर्चुनेटली वो अब चली गई हैं, तो आपने कहा कि अच्छे लोगों से आप मिले, तो आशा जी तो एक बड़ी ही ये उम्दादार, एक तो सिंगर का तो छोड़ ही दीजिए, उनके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बट एज़ अ पर्सन ऑल्सो, जिस तरीके से उनका चाइल्ड लाइक बिहेवियर था, मतलब वो भी काफ़ी टाइम के बाद जब वो निकलीं, तो आपका उनसे इंटरैक्शन, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं, अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे उनका ध्यान आया, बिकॉज़ जो लोग सुन रहे हैं आपको, उनको भी जानते हैं। उनके इंटरैक्शन में आपका क्या लगा आपको, कुछ अपार्ट फ्रॉम म्यूज़िक एज़ अ पर्सन? 3-4 महीने पहले मैं उनको मिला था, जी। और उन्होंने उस दिन बड़े अच्छे कबाब मुझे बना के खिलाए थे। अच्छा। इससे पहले उन्होंने मुझे बिरयानी भी, तो मुझे हमेशा जब भी मिलती थी कहती थी, घर आइए, मैं आपको बना के खिलाऊंगी। बनाने का बड़ा शौक। वो एक ऐसी लेडी थी जिनके अंदर सिंगिंग की वैरायटी बहुत थी। वो तेरा मन दर्पण के, और हुस्न के लाखों रंग कौन सा रंग देखोगे, ये भी गा सकती थी। दम मारो दम भी गा सकती थी। तो उनकी आवाज में अच्छा लगता। लता जी की आवाज में इस तरह के गाने नहीं सूट करते थे, तो फिर दोनों बहनें स्टैब्लिश नहीं हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सुमन कल्याण, जिनकी अभी डेथ हुई हफ्ता 10 दिन पहले ही। सुमन कल्याणपुर जी को कोई सुने तो ये कहेगा कि लता जी गा गा रही हैं। बिल्कुल लता जी। तो क्योंकि एक स्टाइल हो गई, और लता जी डेफिनेटली उनसे बेटर थी। अगर कोई एक्सपर्ट सुनेगा मेरे जैसे, तो ये कहेगा कि सुमन कल्याणपुर लता जी के 80% थे। अच्छा। और लोग धोखा खा जाते थे कि ये लता जी हैं या सुमन जी। ओके। तो एक समय पर ये दो गायिकाएं आ गईं, तो लोगों ने तो लता जी को ही गवाया ज्यादा, क्योंकि वो इनसे बेटर थी। अगर आशा जी भी लता जी की तरह गाती, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती कि वे किसको गवाएं। बिल्कुल। हम्म? अगर अलग अलग है कोई, तो ही नाम होगा। जैसे रफी साहब का अपना नाम होगा,
मुकेश जी का अपना हुआ, किशोर कुमार का अपना हुआ, तलत महमूद का अपना हुआ, हेमंत कुमार का अपना हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये सब अलग अलग आवाजें, किसी आवाज कोई किसी से मिलती। महेंद्र कपूर जी का अलग था। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट लॉट आया, अभी कुमार शानू, उदित नारायण, सोनू निगम, कैलाश खेर, सबकी अलग अलग आवाज है, इसलिए सब लोग अलग अलग टिके हुए हैं। सर आपको क्या लगता है कि जब ये जो इतने बड़े-बड़े सिंगर्स हैं इंक्लूडिंग आप भी, मतलब क्या करें? बड़ापन तो सर आपकी अपनी मेहनत से होता है और आपकी अपनी शिद्दत से होता है। बट एक नॉर्मल इंसान जो एक नॉर्मल घर में पला-बड़ा है, उसको किस तरीके की अपनी मेंटल फ्रेमवर्क को बनाए रखना है कि वो एक अपने जो उसका मन है म्यूज़िक में जिसका उसका मन है, वो कहीं न कहीं अपने आप को कितना मतलब क्या मेंटल फ्रेमवर्क होना चाहिए किसी का? टू रीच व्हेरेवर ही विल रीच और शी विल रीच। उसका तो हम बोल नहीं सकते, इंडस्ट्री तो अलग है सबके लिए। तो जो उसका हम नहीं बात कर सकते कि इंडस्ट्री क्या देगी। बट आप क्या दे सकते हो इंडस्ट्री को आपके हिसाब से एज़ अ परफॉर्मर, एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ अ सिंगर? मैं इंडस्ट्री को पिछले 50 साल से ऐसा म्यूजिक दे रहा हूँ जो लोगों को सुकून देता है। मेरा भजन सुन के लोगों को शांति मिलती है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के कहते हैं भाई जरा इनका भजन लगा दो, हमको सुनना है। आपके घर में भी होगा, जी, आपके पेरेंट्स ही कहते होंगे कि वे लगा दो। जी। फिर आप भी सुबह उठ के, कोई ये सुबह उठ के थोड़ी कहता है कि जरा माइकल जैक्सन का है बोलो, जिससे सुबह शांति आए, चैन आए, दिन शुद्ध हो जाए, तो वो मेरा नाम लेते हैं कि भाई इनका है लगा दो। उसके बाद धीरे धीरे दिन ढलता है, फिर वो कहते हैं भाई जगजीत सिंह की गजल लगा दो, जी। मेहंदी हसन लगा दो, गुलाब अली लगा। धीरे धीरे दिन ढलता है तो फिर संगीत का एक शेप चेंज हो जाता है। लेकिन जब सुबह इंसान उठा है, जब वो पूरी तरह शांत है, उसको भजन ही अच्छे लगते। तो मैंने ये दिया है पिछले 50 साल में कि लोगों को सुकून बहुत मिले। जैसे देश जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, जैसे ट्रिनिडैड है, साउथ अफ्रीका है, सूरीनाम, गयाना, इन सब जगह लोग हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन भजन सब सुबह उठ, दैट्स इंटरेस्टिंग, वेरी अगर ये शांति मैं लोगों को दे रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि यही मेरा कंट्रीब्यूशन। beautiful, sir. Sir, if life could summarize in a single musical composition, what would be your sound like? What would you sound like if just one composition? How would you sound? ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगे, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। Nice, sir. Beautiful. और अभी देखिए सर एक चीज और लाइक आई वांटेड टू बिकॉज आई एम सो कहते हैं ना मेरा मन ही नहीं भरता आपसे टू बी अब मैं ऑन एयर बोलना चाहती हूँ it's really like and before we leave what is one belief you held strongly when you were younger that has changed with age. एक था आपका बिलीफ जो एज के बाद आपने देखा और उसको चेंज किया। मेरे बचपन में से ही मेरे मन में आ गया था कि मैं एक सिंगर बनूंगा, लेकिन इतना नाम होगा ये पता था कि आई विल सक्सेसफुल। बचपन में ही लोग मुझे सुन रहे थे इतने प्यार से। आई स्टार्टेड अर्निंग मनी फ्रॉम द एज ऑफ 7। मुझे कोई पैसे की कमी नहीं, बल्कि उम्र से मैं अपने पूरे क्लास के बच्चों को, हमारा आइसक्रीम वाला जो था एक दिन हमारे घर आया पिताजी के पास। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कुछ 55 ईयर्स पुरानी, 65 ईयर्स पुरानी, ओके। when I was 7 8 years old। पिताजी के पास आए, आपसे बात करनी है। क्या बात करनी? कहते आपका बेटा जो अनूप है उसका बिल बन गया है 30 रुपए, वो सारे बच्चों को आइसक्रीम खिलाते रहते हैं हमारी।
तो 30 रुपए, तो 30 रुपए तो बहुत बड़ी बात थी उन दिनों। 65 साल पहले 30 रुपए मतलब आज के 50,000 रुपए। गॉड। ओके। तो पिताजी ने कहा, अच्छा तुम मुझे बुलाया, ये तो क्या करते हो तुम, 30 रुपए का बिल बन गया आइसक्रीम का। तो मैंने कहा तो क्या हो गया, अभी होली आ रही है, सब जगह प्रोग्राम हो, तो 50-60 रुपए कमाएंगे, 30 से इसको, तो किसी तरह की कोई चिंता नहीं, पता है तो मैं ओके। कर दूंगा। तो ऐसा था। वाओ। तो वही आज भी मेरे घर में रोज पार्टी होती है, जिस दिन मैं घर में हूँ उस दिन पार्टी। कल रात को बहुत अच्छी पार्टी थी, शबीर कुमार जी आए और भी सिंगर्स आए, सबने गाया। तो हमारे घर में महीने में 6-7 पार्टीज होती हैं ऐसे, जिसमें सारे सिंगर आते हैं, हरिहरन जी, तो तलत अजीज जी, हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, वो गाना बजाना। यही चीज है जो बचपन से हमने सीखी, उससे मिलना जुलना, सबका गाना सुन को अप्रिशिएट करना, वही आज तक हो रहा है और यही आगे होता रहे। बहुत बढ़िया सर। एंड सर, ये दिस इज समथिंग लाइक व्हाट यू जस्ट सेड कि म्यूजिक इज योर थिंग। आप म्यूजिक के लिए बने हैं, आप बचपन से ही थे। बट इसी म्यूजिक ने आपको, आई डोंट नो इफ यू फील द सक्सेस इज बी गिवन टू यू थ्रू दिस म्यूजिक, और व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? ये जो आपने कहा मुझे लोग जानने लग गए, तो ये फेम सक्सेस है क्या, या क्या है सक्सेस आपके हिसाब से? फेम पार्ट ऑफ सक्सेस है, लोग जानने लग गए उतना काफी नहीं, लोग इज्जत करें, लोग आपका नाम लें तो इज्जत करें, उनके मन में श्रद्धा है, लोग अपने घरों में तस्वीर रखें, लोगों के अंदर वो श्रद्धा है। हमने कितने ही लोगों को देखा है, मंदिरों में देखा है हमने। रियली? वाओ। हाँ, तो ये श्रद्धा का कारण है। और क्या कारण है, जी। जी। श्रद्धा कारण है। तो अगर ये हम क्रिएट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि लाइफ सक्सेसफुल है। म्यूजिक से केवल नाम होना इनफ नहीं है, डिग्निटी बने, रिस्पेक्ट बने, प्यार बने, ये सब अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि सक्सेसफुल है। सर, यही जो आपने बात करी, बिकॉज यू बीन टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन एंड पीस, तो आप मुझे बताइए व्हाट डज पीस मीन टू यू टुडे? आज की डेट में आप पीसफुल जब बोलते हैं तो उसका क्या मायना है? पीसफुल का मतलब है कि अगर कुछ अरेंजमेंट्स देखता हूँ आज नहीं है, तो मुझे पता है कि कल हो जाएंगे। ये नहीं कि वो लेके हम रात को सो ना पाए, मजे से सोते हैं, दूसरे दिन देखते हैं सॉल्व हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि सॉल्व तो होना ही है। हमको कौन टाटा बिरला की, हम कोई अंबानी, हमारी तो प्रॉब्लम भी छोटी मोटी, तो वो जो छोटी मोटी होती हैं, पता है कल ठीक हो जाएगी, सो जाओ, दूसरे दिन ठीक होगी। तो इसलिए हम हर वक्त आनंद में रहते हैं, शांति में रहते हैं, प्रेम से रहते So now it's like, what would Anup Jalota ji like to be remembered? ये एक बहुत सवाल है जो शायद आपको बहुत बार पूछा गया हो. So but not as an artist. But sir, जैसे आप बता रहे थे पीसफुल के, सक्सेस के, तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको कैसे याद करा जाए? हैं। एज ए ह्यूमन भी लोग इसी तरह याद करें कि मैं हमेशा दूसरे कलाकारों को जहां भी पॉसिबल हुआ, मैंने उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, फाइनेंशियली जितनी अपनी ताकत है मैं, और मैंने वो म्यूजिक प्रोवाइड किया है जो जनरेशंस तक, 4 जनरेशन तो मैं जानता हूँ जो मुझे सुनती हैं, जी, तो हो सकता है कि 5वीं जनरेशन भी सुन ले। 100% सर. यही मैं अपना लाइफ में। ब्यूटीफुल. सर, बिफोर वी लीव, मैंने सोचा था इस बार एक एक कुछ रैपिड फायर राउंड किया जाए आपसे. आर यू गुड विद दैट? तो इट इज जस्ट फॉर 2 to 3 minutes का है. एंड देन, तो आई वांटेड टू आस्क यू, एंड लाइक 2 3 minutes, जस्ट वन वर्ड क्वेश्चंस हैं ये. तो आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। ओके. सो देन, वन रागा क्लोजेस्ट टू योर हार्ट. राग गुजरी तोड़ी। थोड़ा सुना दीजिए. सारेगा मगरे सनी मगरे सा, जग में सुंदर है दो नाम,
चाहे कृष्ण कहूँ या राम, बोलो राम राम राम। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। ये दो कंपोजिशन उसी में। Beautiful, sir. Wow. Thank you. And one city that feels like home, लंदन। one book everyone should read, भगवत गीता। one habit you never compromise on. नो एंगर। Yes. One word that defines your life today, म्यूजिक एंड लव। or music or silence, साइलेंस। devotion or discipline. डिसिप्लिन। And sir, what are you still learning? I'm learning to live, to get strength, to support and help people in the world. Thank you so much, sir. It was an honor to be with you, sir. I will never say enough to you. As many times I would have the chance to talk to you, I'm going to do it. Even if it is like people will say, हर हफ्ते अनूप जी के साथ बात करती हूँ। अम्मी हाँ, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आता है. Thank you so much, sir. And this has been a immense pleasure to listen to you and always a learning experience. So, Thank thanks a you, lot. Samia. Thanks, Thank you. Samia. Bye bye. Thank you. Bye.